Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of energy engineering subject. This is lecture 6, and in the lecture 6 we will discuss about hydroelectric power. So hydroelectric power के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. What is hydroelectric power actually, and hydroelectric power से हम इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं by means of water as a primary source. And what are different type of hydroelectric power plants? There are 3 different type of hydroelectric power plants, but उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. And further in the last lecture we have discussed in detail about the wind energy के components हमने देखा था. And wind energy के अंदर components क्या क्या हैं, टरबाइन के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनकी वर्किंग हमने एक एक करके देखा था. एंड टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट दी हाउ these what are the components of hydroelectric power plants. So थोड़ा बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं. About 71% आपको पता है कि out of the 100% 71% of the earth total surface is water covered. So earth का जो total 100% में से जो 71% है वो which is covered with water, and out of this 71% 96.5% of the water belongs to ocean, and rest of the 3% belongs to lakes, rivers, streams, water vapors, glacier and ice caps. Further, energy from water is considered as a renewable energy. So energy आप जो यूज़ करते हैं वाटर को, जो एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं, that is purely renewable. बिकॉज फॉर एग्जांपल आप टरबाइन को मूव करने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं, टरबाइन को मूव कराने के बाद वो वाटर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि आप इसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. सो इसके ये अदर बेनिफिट ये है कि ये ग्रीन हाउस एमिशन नहीं होती यहाँ से. सो लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं एंड फर्दर ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं इन दी अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. सो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है बाय मींस ऑफ वाटर, यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन नहीं होती है. फर्दर वाटर जो है वो आप यूज़ करते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए. द एग्जांपल इज थर्मल कूलिंग पावर प्लांट. थर्मल कूलिंग पावर प्लांट के लिए आप यूज़ करते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल एप्लीकेशन बेसिकली. So water is also used to generate steam for fossil fuel extraction and processing of biofuel crops irrigation. So other than energy production process, water को आप fossil fuels की extraction के लिए आप use कर सकते हैं and irrigation के लिए भी आप use करते हैं. But about 15% of the world total water withdrawal for energy production. So 15% जो है ना वो आप electric production energy production के लिए आप यूज़ करते हैं. So concluding this slide, 71% जो है ना ये एक फैक्ट है कि 71% of the earth water is earth surface is covered by water, and out of this 71% 96.5% is belongs to ocean, and rest of the 3% belongs to lakes, rivers, streams, water vapors and glaciers. So ये purely renewable energy के types हैं, and greenhouse emission नहीं होती यहाँ से. and further इसकी application यहाँ भी discuss किया हुआ है कि आप energy की production के लिए use करते हैं. other than energy की production, we are also used water in irrigation purpose and vegetation purpose. So this is the conclusion of this slide. So the energy from moving water can be used to create electricity. So there are two different groups. आप दो different group में आप divide कर सकते हैं. Not only the hydroelectric power but also hydropower and the tidal power. दो different categories है जिसमें आप water को use करते हैं for the production of electricity. First is hydropower and second is tidal power. So what is hydropower? So hydropower में आप क्या करते हैं basically? In hydropower you move the water from एक height से आप water को move करते हैं, and because of this the potential energy from the here is converted into kinetic energy, and because of this kinetic energy the turbine blade moves, and turbine blade move होने की वजह से ये जो जनरेटर है, दिस इज अ जनरेटर, एंड जनरेटर का जो शाफ्ट मूव होता है, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है. सो देयर आर टू प्राइमरी हाइड्रो technologies, dams and runoff river. So
इस पूरे मैकेनिज्म को आप दो जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, आप डैम में यूज़ कर सकते हैं एंड रन ऑफ रिवर में यूज़ कर सकते हैं। सो कैटेगरी दोनों डिफरेंट है, बट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह से होती है इन द हाइड्रो पावर। सो टाइडल पावर कन्वर्ट्स natural rise and fall of the tide into electricity. The tidal energy use mechanical energy to create electricity using a variety of specific technologies including tidal fan, barrages and turbines. So इंटरेस्टिंगली आप क्या करते हैं कि जो ओशन के अंदर जो टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द मून की वजह से जो टाइड प्रोड्यूस होते हैं, सो उसको आप हार्नेस किया जाता है एंड लेटर दिस टाइड्स आर यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अनदर टॉपिक है, दिस इज अनदर टॉपिक, इसको हम अलग से लेक्चर में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर टाइम बचा तो सेमेस्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रो पावर। सो आप राइट नाउ टाइडल पावर के बारे में आप ये याद रखिए कि टाइडल पावर वो पावर होती है जो कि आप टाइड से राइज एंड अप एंड डाउन की वजह से जो ओशन में जो अप्स एंड डाउन होती है बिकॉज ऑफ द मून, उसको हम हार्नेस किया जाता है एंड दिस harness is this ups and down movement is used to creation of electricity. So definition: hydropower or hydroelectricity refer to conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered as a renewable source of energy because the cycle is constantly renewed by sun. So इसमें आप क्या करते हैं कि द फ्लोइंग वाटर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि फ्लोइंग वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं बाय मींस ऑफ जनरेटर। सो इट इज़ कंसीडर्ड ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज द वाटर साइकिल इज कंस्टेंटली रिन्यूड बाय सन। आप इसमें जो वाटर यूज़ करते हैं आप इसको फर्दर सेकेंडरी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो सन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि बिकॉज दिस वाटर आप स्टीम बनता है, स्टीम वाटर को बाय मींस ऑफ सन स्टीम बनता है, फिर स्टीम बनने के बाद एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर से वापस ये बाय मींस ऑफ रेन दोबारा से ज़मीन पे आ जाता है। सो दिस इज कंस्टेंटली रिन्यूइंग, सो रिन्यूएबल सोर्स है ये। सो बेस्ड ऑन दिस hydro plant facility can be categorized into three different sizes: large, small and micro. Above 30 मिलियन मेगावाट के लिए आप जब यूज़ करते हैं तो उसको हम लार्ज कहते हैं। 100 to 30 मेगावाट के लिए, 100 किलोवाट टू 30 मेगावाट के लिए जब आप इसको इस पावर प्लांट को, जिस पावर प्लांट को आप यूज़ करते हैं तो आप इसको स्मॉल स्केल बोलते हैं एंड माइक्रो स्केल बोलते हैं कि जब आप 100 किलोवाट से कम सेटअप के लिए आप जब हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, सो उस पूरे सेटअप को आप बोलते हैं कि माइक्रो सेटअप है। सो हिस्टोरिकली आप इसको कैसे करते थे? हिस्टोरिकली मिलिंग ग्रेन्स, मिलिंग एंड सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन्स, जो कि मिलिंग ग्रेन्स को या फिर ग्राइंडिंग ग्रेन्स को आप के लिए आप यूज़ करते थे। टुडे आप प्राइमरीली आप यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए बाय मींस ऑफ जनरेटर, दिस इज द जनरेटर एंड आल्सो द टरबाइन, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज इसका फ़ायदा ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आप लेटर डिफरेंट सोर्सेज में आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। सो अगेन लाइक सोलर, लाइक विंड पावर, आप जस्ट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर रहे थे, यहाँ भी आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करेंगे एंड देन उस इलेक्ट्रिसिटी को आप एज ए सेकेंडरी सोर्स किसी भी और फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। सो फर्दर जो हाइड्रो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है बाय मींस ऑफ बाय यूजिंग वाटर, सो दैट इज 6.5% ऑफ द टोटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। सो वर्ल्ड वाइड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है, डिफरेंट सोर्सेज जो आप यूज़ कर रहे हैं। सो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो प्रोडक्शन होती है दैट इज 6.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। सो इसमें फर्दर इनोवेशंस आ रही है, फर्दर इसमें रिसर्च हो रही है, डेट्स वाई इसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसको आप यूज़ कर रहे होंगे। सो फर्दर इसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, obvious सी बात है कि इतने बड़े स्केल में आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे,
आपको रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एंड इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इसको इसमें मेन प्रॉब्लम यही है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑल्दो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के बावजूद ये फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल सोर्स है एंड बिकॉज इसको आप एनर्जी की स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एंड फ्लेक्सिबल भी है, इसमें कोई कार्बन की इमिशंस वगैरह नहीं होती एंड वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो हाउएवर उसके अलावा इसमें जो मेजर कंसर्न जो हाइड्रो पावर में है वो ये है कि जो डैम की फैसिलिटी को बिल्ड करना इतने बड़े स्केल में, इतने स्क्वायर किलोमीटर में आप डैम्स बना रहे होते हैं, सो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। एक तो बिल्ड करना और दूसरा बिल्ड करने के बाद वहाँ के जो लोकेलिटीज़ को आप किसी और जगह पे शिफ्ट करना, वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ लोग रह रहे होंगे, सो उनकी ज़मीनी होंगी, वहाँ पे उनके कारोबार होंगे, सो उनको कहीं और जगह एडजस्ट करना, सो वो बहुत मुश्किल काम होता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। फर्दर इसमें यह है कि disrupting habitats for the wildlife, blocking fish passage and displacing other local communities. So local community को displace आप करते हैं, फिर उसके अलावा आप जो वहाँ पे organisms है जो oceans के अंदर होते हैं, पानी के अंदर जो organisms होता है उसके लिए आप जगह रोक रहे हो बेसिकली, सो उसके लिए जगह नहीं मिल रही होती, blocking the fish passage. So in addition, dam failure can be catastrophic, further disrupting landscape and claiming the lives of the those living organism. अच्छा, ये इसके लिए भी एक खतरा भी रहता है हमेशा कि डैम्स के साइड्स पे जो आबादी रहती है, जो एरिया है, उनके लिए बहुत खतरा है कि अगर किसी खुदा न खास्ता अगर डैम्स टूट जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है पूरे लोकेलिटीज़ के लिए। सो मेन कंपोनेंट्स है क्या है इसमें, एक रिजर्वायर है सबसे पहले एंड देन इनटेक्स एंड देन पेनस्टॉक, टरबाइन, जनरेटर, ठीक है जी, ये है। फर्दर पावर हाउस एंड ग्रिड सिस्टम है। सो बहुत ही सिंपलेस्ट है, अनलाइक सोलर एंड अनलाइक विंड। सो यहाँ ये आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज रिजर्वायर। रिजर्वायर आप क्या करते हैं कि इसको आप फॉर एग्जांपल डैम कह सकते हैं कि उसमें आप पानी को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, पानी को आप जमा करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टरबाइन। टरबाइन को मूव करने के लिए जहाँ से पानी आता है उसको आप एक्यूमुलेट करते हो बेसिकली। एंड देन इनटेक। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी है, इसको आप पानी को कम रिलीज करना है या फिर ज़्यादा रिलीज करना है, वो फिर आप इनटेक से एडजस्ट करते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर रहे हो तो बेसिकली। देन अ पेनस्टॉक। पेनस्टॉक इज बेसिकली अ पैसेज ऑफ मूविंग वाटर फ्रॉम अ रिजर्वायर टू द टरबाइन। टरबाइन को मूव कराने के लिए, टरबाइन को रोटेट कराने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं, डेट यूजेस पेनस्टॉक एरिया। पेनस्टॉक से यहाँ से पानी आता है एंड टरबाइन को बेसिकली मूव करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द टरबाइन, ये एक शाफ्ट है जनरेटर का शाफ्ट मूव होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टरबाइन एंड उस शाफ्ट की मूवमेंट की वजह से एंड यहाँ पे जो जनरेटर है, जो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोटेक्शन होती है एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड ऑन द ग्रिड, या इसको ग्रिड कह सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन्स है, उसमें आप इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हो बेसिकली। एंड देन पावर हाउस। पावर हाउस में क्या है बेसिकली, पावर हाउस में जनरेटर के अलावा ग्रिड सिस्टम भी होगा, सर्किट्स भी होंगे, कंट्रोलर्स होंगे या ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ पावर हाउस। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। So concluding the slide, first you have a reservoir where you are accumulating water basically. Then you have intake where you can control the inlet in incoming water. So there is a penstock. Penstock आपके पास है जहाँ पे आप वाटर को यूज़ करते हैं to move the turbine, और वाटर वहाँ से मूव होते हैं, पेनस्टॉक से मूव होकर टरबाइन को मूव करते हैं बेसिकली। एंड देन दिस इज अ टरबाइन। टरबाइन इसे बेसिकली द टरबाइन जो है वो मूव होता है बाय मींस ऑफ वाटर जो कि पेनस्टॉक से आ रहा होता है। एंड देन दिस बाय मूविंग दिस टरबाइन, ये जो जनरेटर के शाफ्ट मूव होता है एंड दिस इज अ जनरेटर
जनरेटर के शाफ्ट मूव होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोटेक्शन होती है, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड जो कि ट्रांसफार्मर में आप यूज़ करते हैं, एंड देन आप लोकेलिटीज़ में आप ट्रांसफ़र करते हो उस इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, दिस इज द थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट स्लाइड में हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रिजर्वायर जहाँ पर आप पानी को स्टोर करते हैं, इनटेक और कंट्रोल गेट जहाँ से आप पानी को कंट्रोल करते हैं, एंड पेन स्टॉक जहाँ से a long pipe and shaft that carries water flow from a reservoir toward the power generation unit. So जहाँ पे पावर जनरेशन यूनिट इंस्टॉल्ड है वहाँ से आप पानी को आप सप्लाई कर रहे हो बाय मीन्स ऑफ लॉन्ग पाइप या शाफ्ट, वहाँ से आप पानी को ट्रांसफर कर रहे हो बेसिकली। जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, जनरेटर की मूवमेंट की वजह से टरबाइन की मूवमेंट की वजह से जनरेटर मूव होता है, एंड देन by means of this movement of the shaft or generator you are able to generate electricity, and this is the finally the turbine. Okay, types of hydro power plants. ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे हो रही थी कि आप टरबाइन ब्लेड्स की मूवमेंट की वजह से शाफ्ट की मूवमेंट हो रही थी, एंड शाफ्ट की मूवमेंट की वजह से जो कि ये अलग टॉपिक है कि जनरेटर के अंदर होता क्या है बेसिकली जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, वो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पढ़ते हैं। हमारे काम ये है कि जस्ट हमें ये पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे होती है बाय मींस ऑफ शाफ्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द टरबाइन, एंड शाफ्ट की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है। सो पावर प्लांट्स, अगर हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स. फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज. So are the most common technology which uses dam to create large reservoirs of water. Electricity is made when water passes through the turbine in the dam. So impoundment facility उसको कहते हैं जिसमें आप डैम को यूज़ करते हैं एज अ डायरेक्ट सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो पेन स्टॉक के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो डायरेक्टली आपके पास डैम से आ रही है, डेट इज इम्पोर्टेंट. सो पंप स्टोरेज फैसिलिटी क्या है कि जो कि पंप स्टोरेज फैसिलिटी क्या होता है कि आर सिमिलर बट सेकंड रिजर्वायर्स बिलो द डैम. आप इससे बिल्कुल सिमिलर है, आप डैम में यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली उसको टरबाइन को मूव करने के लिए, एंड बाय मीन्स ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ टरबाइन यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. बट इसमें एक और चीज़ है कि एक सेकंड रिजर्वायर भी होता है. Second reservoir water can be pumped from lower reservoir to upper reservoir, storing energy for use at later time. So आप डैम के अलावा आप एक और रिजर्वायर यूज़ करते हो फॉर दी स्टोरेज पर्पस. जब आपको वाटर चाहिए होता है तो वहाँ से आप यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो पम्प वाटर फैसिलिटीज इज अ सेकेंड टाइप. सो रन ऑफ रिवर. So rely more on natural water flow rates, diverting just a portion of water through a turbine without the use of dam or reservoirs. So unlike pump water reservoirs या फिर डैम, इसमें आप क्या करते हैं कि जो दरिया का पानी है उसको आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मूविंग द टरबाइन, और टरबाइन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है. So this is the 3 different types of hydro power plants. So first is impoundment, जिसमें आप डैम यूज़ करते हैं एज ए प्राइमरी सोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ टरबाइन. इसमें भी आप डैम यूज़ करते हैं, बट एक और रिजर्वायर है विच इज़ यूज एज सेकेंड रिजर्वायर. सो थर्ड इज रन ऑफ रिवर. इसमें आप क्या करते हैं कि दरिया के पानी को आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मूविंग टरबाइन. इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. व्हाट आर इम्पोर्टेंट, व्हाट आर पंप स्टोरेज फैसिलिटी, एंड व्हाट आर द रन ऑफ रिवर. So the most common type of hydroelectric power is important facility, and important facility typically has a large power system, uses dam and storage water in a reservoir. So water released from reservoir flows to the turbine, spinning it, which in turn activates the generator to produce electricity. The water may be released either to meet changing electricity needs to maintain a constant reservoir level.
सो वही चीज़ है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और अभी तक करते आ रहे हैं कि एक रेजरवायर होता है, जैसे रेजरवायर, एंड इस पेन स्टॉक से वाटर के मूवमेंट के बाद जो यहाँ पे एक सेटअप लगाया हुआ है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे टरबाइन है, जैसे टरबाइन, एंड दिस इज द जनरेटर, टरबाइन जनरेटर एंड आल्सो द ट्रांसफार्मर बेसिकली। सो इनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोटेक्शन हो रही होती है। सो इस वाटर को जो कि यहाँ से फ्लो होकर बाहर निकल रहा है उसको आप दोबारा से रेजरवायर में आप इंटर कर सकते हैं, एंड पर्पस ये होगा कि वाटर लेवल का हमेशा मेंटेन रखें। सो इसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। ये डैम है, बेसिकली डैम में ऑब्वियसली पानी एक जगह से आ रहा होगा और एक जगह से निकल रहा होगा। सो ये पूरा एक सेटअप बनाया होता है, एंड दिस सेटअप इस यहाँ पे बनाया होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्शन के लिए बनाया होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट फैसिलिटी जो कि बहुत ही बेसिक्स था। सो अनदर टाइप इज पंप स्टोरेज फैसिलिटीज। So another type of hydropower is pump storage, works like a battery. So storing the electricity generated by power sources like solar, wind and nuclear. लाइक आपने पढ़ा था कि सोलर में, विंड में, सोलर में आप बैटरी यूज़ करते हैं, विंड में भी कर सकते हैं, एंड न्यूक्लियर पावर अभी जो आप पढ़ेंगे सो उसमें भी बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टोरेज पर्पस। सो यहाँ भी आप एक सेकेंडरी रिजर्वायर को यूज़ करते हैं फॉर द स्टोरेज पर्पस। लाइक सोलर में आप क्या कर रहे थे कि सोलर में दिन के टाइम पे इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, बट रात के टाइम पे इसकी एफिशिएंसी, जब सूरज नहीं होती तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, लाइक ज़ीरो प्रोडक्शन भी हो सकती है वहाँ रात के टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे जब ज़ीरो प्रोडक्शन होती है तो उसमें वहाँ पे आप क्या करते हैं, बैटरी को यूज़ करते हैं फॉर दी स्टोरेज पर्पस। सो यहाँ पे आप सेकेंडरी रिजर्वायर को आप यूज़ करते हैं फॉर दी सेकेंडरी पर्पस, फॉर दी जस्ट लाइक विच वर्क जस्ट लाइक ए बैटरी। जब आपके पास पानी कम होता है या फिर पानी कम होता है तो आप क्या करते हैं कि आप इस सेकेंडरी रिजर्वायर को यूज़ करते हैं जस्ट टू स्पिन द टरबाइन। When the demand of electricity is low, जब आपकी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लो होती है तो आप इसको रिजर्वायर में आप स्टोर कर सकते हैं, एंड देन जब जो डिमांड जब बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की तब आप इस रिजर्वायर को आप यूज़ कर सकते हैं। During the period of high electrical demand, the water is released back to the lower reservoir and turn turbine, generating electricity. So, like I said कि जब इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो आप इसको रिजर्वायर को यूज़ कर सकते हैं, जब आप इसकी डिमांड कम होती है इलेक्ट्रिसिटी की तो इस रिजर्वायर में आप पानी को जमा कर सकते हैं। सो अगेन कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, another type of हाइड्रो पावर प्लांट्स आर पंप स्टोरेज फैसिलिटीज। उसमें आप क्या कर रहे हैं, डेट वर्क्स जस्ट लाइक ए इम्पोर्टेंट फैसिलिटी, इसी तरह वर्क करते हैं। जस्ट इसमें एक एडिशनल चीज़ है जो विच इज सेकेंडरी रिजर्वायर। सेकेंड रिजर्वायर जस्ट वर्क लाइक ए बैटरी, बैटरी की तरह वर्क करता है। जिस तरह आप सोलर में बैटरी आप यूज़ कर रहे थे जस्ट टू स्टोर एनर्जी व्हेन द सन इज नॉट अवेलेबल। सो तब सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाती है, देन आप बैटरी यूज़ कर रहे थे जो कि दिन के एनर्जी को स्टोर कर रहे थे और रात को आप यूटिलाइज कर सकते थे। सो जस्ट लाइक द सेकेंडरी रिजर्वायर जस्ट वर्क लाइक दिस। और जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है तो आप इसको आप सेकेंडरी रिजर्वायर में वाटर को एक्यूमुलेट करते हैं, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जब बढ़ जाती है एंड देन यू कैन यूज़ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम। आपके पास यहाँ तक तो, यहाँ से ऊपर तक तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ था। दिस इज द रिजर्वायर, आप इसको डैम कह सकते हैं कि यहाँ से पानी के फ्लो है। दिस इज द पेन स्टॉक, पानी की मूवमेंट हो रही है, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ वाटर जो कि टरबाइन ब्लेड को मूव करता है, एंड फिर उसके बाद जनरेटर है आपके पास, जनरेटर की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी आपके ग्रिड तक पहुंच जाता है। दिस इज द बेसिक, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था, बट फर्दर यहाँ पे एक सेकेंडरी रिजर्वायर है जो कि आप एज ए बैटरी आप यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ।
फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर ली, फिर उसके बाद अच्छा इसको आपने सही से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो इन पंप मोड, फ्लो इन पंप मोड इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम्ड, सो वाटर की मूवमेंट अप होती है। एंड फ्लो इन टरबाइन मोड इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड, जब इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है तो ऑब्वियसली पानी की मूवमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक होगी, एंड ग्रेविटी बाय मींस ऑफ ग्रेविटी ये फ्लो करेगा पानी, एंड देन टरबाइन ब्लेड को मूव करेगा। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं होती या फिर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जीरो हो जाती है, सो क्या करते हैं कि आप जो लोअर रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर में पानी को ट्रांसफर करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लो इन वाटर मोड इलेक्ट्रिक डिमांड कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक डिमांड कंज्यूम होने के बाद आप क्या करते हैं कि लोअर रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर में पानी को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे आप वाटर पंप को लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पंप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ दिस पंप्स आप वाटर को आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर। So this is the conclusion of this slide. So third is runoff river. So a diversion sometimes called runoff river. Okay, runoff river कहते हैं या फिर diversion भी कहते हैं इसको। Facility channels a portion of river through a canal or penstock. It may not require the use of dam. Okay, so अब इस यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस इज द पावर स्टेशन। ये एक वो बना हुआ है, यहाँ पे एक इंस्टॉल किया हुआ है जनरेटर को एंड टरबाइन को। सो यहाँ से इनटेक वाटर का इनटेक है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि बाय मींस ऑफ लॉन्ग पाइप आप वाटर को यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से इनटेक ले सकते हैं वाटर की। सो यहाँ पे टरबाइन ब्लेड्स लगे हुए हैं, एंड देन टरबाइन को मूव करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होने के बाद एंड देन यहाँ पे वाटर आउट हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई आपको डैम की जरूरत नहीं पड़ी, कोई रिजर्वायर की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट आपने क्या किया कि आपने पूरा सेटअप लगाया एंड देन आपने बाय मींस ऑफ पेन स्टॉक आपने एक लॉन्ग पाइप यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, एंड बाय मींस ऑफ दिस लॉन्ग पाइप यू आर गेटिंग वाटर इनटू इट, एंड दिस वाटर मूव्स द टरबाइन, एंड दिस टरबाइन मूव्स टरबाइन बाय मींस ऑफ मूवमेंट ऑफ टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है, एंड देन जो आउट ऑफ दी जो वाटर बाहर आ रही है वो यहाँ से बाहर आ रही है। सो दिस इज द बेसिक। यहाँ इसके फायदे क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि आपको डैम्स की जरूरत नहीं पड़ी, आपको डैम्स की इसकी जरूरत नहीं पड़ी, एंड अगेन आपको पूरा एक बड़ा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट जस्ट आपने एक आपको पेन स्टॉक की जरूरत पड़ी है यहाँ पे जो कि एक लॉन्ग पाइप है। सो ये डिपेंड करता है कि इसके दरिया के अंदर पानी कितना है। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसी जगह पे इंस्टॉल किया है कि जहाँ पे पानी लोअर होने के बाद ये पूरा सिस्टम वर्क नहीं करता, यहाँ से पानी का इनफ्लो नहीं हो रही है, सो तो आपका वो काम नहीं है। तो इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका पानी कितना है, नेचुरली आपके पास पानी इस रिवर से कितना आ रहा है। सो ये टोटल इस पर डिपेंड करता है। सो इसके फायदे क्या हैं, फर्स्ट इज रिन्यूएबल। फर्स्ट फायदा ये है कि ये रिन्यूएबल है, इसको आप रिन्यू कर सकते हैं। लाइक टरबाइन ब्लेड्स को आप पानी जो है ना वो टरबाइन ब्लेड्स को मूव करने के लिए आप यूज करते हैं, टरबाइन ब्लेड्स को मूव करने के बाद उस वाटर को आप किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। फर्दर ये जो वाटर है जो टरबाइन ब्लेड को मूव करता है वो फर्दर हीट होके बाय मींस ऑफ सन एटमॉस्फेयर में चले जाता है, एटमॉस्फेयर में चले जाने के बाद अगेन बाय मींस ऑफ क्लाउड एंड वेदर ये gains comes to the earth surface by means of water, sorry by means of रेन से ये वापस आ जाता है जमीन पे और दोबारा से ये पानी बन गया और दोबारा से ये ये रिन्यूएबल एनर्जी है। सो ग्रीन generating electricity with hydro energy is not polluting itself, the only pollution occur during the construction of these massive power plants. So again ये ग्रीन हाउस एनर्जी, ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना वो एमिट नहीं करता, जो कि पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को एंड ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। सो बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का फायदा ये है कि ये किसी चीज को पोल्यूट नहीं करता, कोई एमिशन नहीं होती, डेट्स वाई इसका ये दूसरा फायदा ना वो ये है कि एमिशन नहीं होती है। सो ओनली पोल्यूशन ऑकर्स, ये पोल्यूशन तभी ऑकर होता है जब आप फर्स्ट टाइम आप जो पूरा
पावर प्लांट जब इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑब्वियसली कि इतने बड़े स्केल में आप इंजन को मूव करने के लिए जनरेटर को मूव करके आप यहाँ पे ले आते हो, आल्सो द ट्रांसफार्मर को आप ले आते हो, पूरे सेटअप को आप ले आते हो। सो बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन आप थोड़े बहुत वहाँ पे ग्रीन हाउस की इमिशन हो रही होती है। अदर देन इंस्टॉल होने करने के बाद इसकी प्रोडक्शन, जब इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रही होती है इंस्टॉलेशन के बाद, सो वहाँ पे आप ग्रीन हाउस की इमिशन नहीं हो रही थी। ओके, ये रिलायबल है। There are little fluctuation in terms of electric power that is used by the plants unless the different output is desired. So it is mostly reliable. Reliable इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि वाटर आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है इन द रिजर्वायर। सो वाटर आपके पास अवेलेबल होता है तो इसका मतलब आपने आपने इनलेट से कंट्रोल करना है कि कितना आपको आउटपुट चाहिए, इसी के हिसाब से वाटर को आप इन कर रहे हो तो बेसिकली। सो इट इज रिलायबल। फ्लेक्सिबल, सो फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि लाइक आई सेड कि आपके पास वाटर एक्यूमुलेट करके एक जगह पर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको समर्स में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि एयर कंडीशन, एसी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो समर्स में फॉर एग्जांपल आपको 1000 मेगावाट ज़्यादा चाहिए और विंटर में 1000 मेगावाट कम चाहिए। सो दैट इज़ फ्लेक्सिबल टू एडजस्ट बाय योरसेल्फ कि आप वाटर के इनलेट से आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन को। सो दैट्स वाई दिस इज फ्लेक्सिबल एंड सेफ कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स को हार्नेस करना बहुत मुश्किल काम होता है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज बहुत सेफ है एंड देयर इज नो फ्यूल इन्वॉल्व अदर देन वाटर इज डेट इज। सो वाटर के अलावा कोई और फ्यूल यूज नहीं करते हैं, that is why this is safe as compared to nuclear and fossil fuels. Okay, the first disadvantages is environmental consequences. So इसके environmental consequences है, the environmental consequences of hydropower are related to interventions of nature due to damming the water, change water flow and कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड पावर लाइन्स। सो ऑब्वियसली ये आप जब इंस्टॉल करते हो इसको तो शहर से बहुत दूर जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। सो दैट्स वाई वहाँ पे एक रोड बिछाना पड़ता है आपको। सो विच इज़ इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। पावर लाइन आप बिछाते हो कि लाइक बहुत दूर से आप ग्रिड लाइन फिर आप ले आते हो, फिर एंड देन शहर तक ले आते हो ग्रिड लाइन को, पावर ग्रिड लाइन को। देन दिस इज द इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस बेसिकली। फर्दर इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके लिए ये नुकसानदेह हैं। एंड इसके अलावा जो वहाँ पे जो लोकल्स हैं वहाँ पे रहते हैं, सो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है, उसको किसी और जगह भेजना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे होंगे ऑलरेडी। सो वो एक इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है। फर्दर एक्सपेंसिव, लाइक आई सेड कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक पूरे बड़े स्केल पे लाइक किलोमीटर स्क्वायर्स पे आप डैम लगाते हो, सो ये इटसेल्फ बहुत एक एक्सपेंसिव काम है। सो अगर छोटा डैम होगा तो इसकी ऑब्वियसली आउटपुट कम होगी। सो आपको बड़े डैम चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत बड़े स्केल पे आपको डैम लगाना है, सो विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ड्राउट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड prices are directly related to how much water is available. A drought could be potentially affect this. So obviously water से electricity की प्रोडक्शन हो रही है। जब वाटर की प्रोडक्शन या फिर वाटर का इनलेट अगर नहीं हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल आपने जो रिजर्वायर बनाया है उसके अंदर वाटर ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे होगी? ठीक है, ये टोटल डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन टोटल डिपेंड करता है कि आपके पास वाटर कितना है और वाटर हमेशा आपके पास रेडिली अवेलेबल है कि नहीं। सो ये हमेशा अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर। सो दैट्स वाई ये एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एंड बीइंग एक्सपेंसिव, द इनिशियल कॉस्ट इज very first disadvantages. So this is the end of today's lecture. We have discussed the hydroelectric power, different types of hydroelectric power, different types of hydroelectric power plants, और वाटर के आने के बाद टरबाइन ब्लेड्स के मूव होने के बाद ऐसा क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया।
सो थैंक यू सो मच।